Hello guys, welcome back to my channel Max World. Viewers, I just want to tell you that this is my first video in this channel. I have taken this syllabus from Maharashtra Syllabus Board, class 9 standard. This is a mathematics geometry section, circle. In this chapter today I am going to teach you about theorems. After that we will be solving 6.1 exercise of circle. So without wasting any time, let's get it started. अभी circle मतलब क्या? इट इज जस्ट अ फिगर. एम आई राइट? सर्कल में कॉर्ड होता है, डायमीटर होता है, रेडियस होता है, सेंट्रल एंगल. इन दिस वीडियो आई विल बी explaining you everything related to basic. We will start from basic itself, and after that we will be moving on to the main theme. So in this figure you can see BC is the chord. Am I right? Then PA will be the radius, CD is the diameter. Students, remember, diameter is the longest chord of the circle. So if chord is asked in examination and chord is not given in the figure, you can refer diameter as the chord, and CPA is called as the central angle. Now what is the meaning of the circle? Set of points in a plane which are equidistant from a fixed point in the plane is called as circle. Means what? See, in the circle, point B, point C, point A, point D are the set of points which are at an equal distance from a fixed point. Here the fixed point is P. See, this all points, कौन सा वाला, B, D, C and A, they are at an equal distance from point P. In the plane, it is called as circle. Fixed point is the center of the circle. What I do explain you now. Radius, that is segment joining the center of the circle and a point on the circle. See, in this figure, PA is the radius, starting from P and ending in A. So PA is the radius. Chord, the segment joining any 2 points of the circle. Any 2 points, जैसे कि B and C, point B and C, they are joining the points in the circle. Then C, D are also called as what? Diameter as well as chord. PA is a radius, it is not a chord. Why? Because they are not joining the circle. Am I right? It is starting from A and ending in P. That is the fixed point of the circle. Now let's move on to theorem. See, a perpendicular drawn from the center of a circle on its chord bisects the chord. इसका मतलब क्या है? See friends, theorem में हमेशा याद रखना क्या है कि a perpendicular drawn from the center of the circle, वो first point जो है ना, वो first point given है और हम लोगों को prove क्या करना है? second point, that is circle on its chord bisects the chord. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है AB is the chord of a circle with center O. OP जो है इज परपेंडिकुलर टू chord AB. हम लोग को प्रूव क्या करना है? AP इज कॉन्ग्रुएंट टू PB. लास्ट में आएगा. ये कैसे प्रूव होगा देखते हैं. देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिया हुआ है. एम आई राइट? हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के थ्रू OA एंड OB को ज्वाइन कर लिया है, तो हम लोग को 2 ट्रायंगल मिलेगा. तो हम लोगों को अभी ये राइट एंगल है, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल है. कौन सा? OPA एंड OPB. तो ये राइट एंगल है, इसलिए वी कैन प्रूव दिस थ्रू hypotenuse side theorem. After that CSCT में AP is congruent to PB हो जाएगा. So in this way you have to prove this theorem. Understood? तो हम लोग solution में चलते हैं. AP जो है is congruent to BP. तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में OA एंड OB को ज्वाइन कर लिया है. जैसे कि इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB है, तो दोनों 90 डिग्री है. Am I right? Why it is 90 degree? Because OP जो है is perpendicular to AB. याद रखना, OP अगर perpendicular मतलब देखो, अगर for example chord में कुछ perpendicular अगर साइन आता है तो वो 90 डिग्री ऑटोमेटिकली हो जाता है. This point you have to remember in each and every sum. फिर OP is congruent to OP, that is common side. और जैसे देखेंगे तो OA is congruent to OB. Why? Because it is a hypotenuse.
एंड दे आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. इसमें सेकेंड एक्सरसाइज में, दैट इज सेकेंड प्रैक्टिस सेट में, इसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम है कि रेडाई ऑफ द सेम सर्कल रखने, आई थिंक इन प्रॉब्लम सेट और समथिंग, इसमें रिलेटेड एक प्रॉब्लम है. आपको उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि रेडाई ऑफ द सेम सर्कल का मेजरमेंट कभी भी सेम रहता है. ओके, सो अगर आपको क्लिक नहीं हुआ सम करते समय तो ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखिए. तो ऐसे हम लोग ने प्रूव किया क्या, और ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB हाइपोटेन्यूस साइड थ्योरम, एंड एट फाइनली वी हैव प्रूव्ड व्हाट, PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB. तो हैंस प्रूव्ड, इसका मतलब क्या है कि एक प्रीपेंडिकुलर दैट इज OP ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स ऑन इट्स chord, drawn from the center of a circle on its chord bisects the chord. Bisects the chord मतलब AP is congruent to PB. OP देखो, O से हम लोग ने perpendicular सा bisector perpendicular drawn किया है chord AB पे. So अगर ऐसे ड्रॉ किया है तो इसका मतलब क्या है, AP will be congruent to PB. Understood? अभी चलो हम लोग दूसरे थ्योरम पे चलते हैं. Segment joining the center of a circle and the midpoint of a chord is perpendicular to the chord. So ये सर्कल में देखो, segment joining the center of a circle, segment joining the center of a circle and the midpoint of its chord is perpendicular to the chord. ऊपर हम लोगों ने क्या प्रूव किया, AP is congruent to PB, am I right? और ऊपर क्या दिया था कि OP जो है is perpendicular to AB. इसमें एक्चुअली ये थियरम इट्स कन्वर्स ऑफ द फर्स्ट थियरम. जैसे कि ये थियरम में बताया है कि AP जो है कॉन्ग्रुएंट टू PB है, बट हम लोग को क्या प्रूव करना है, OP जो है इस परपेंडिकुलर टू AB. अभी जस्ट सुनो, लास्ट में हम लोग कैसे इसको प्रूव करेंगे. इसको प्रूव करने का एक ही टिप है, दैट इज हम लोगों को 90 डिग्री क्रिएट करना पड़ेगा. याद है फर्स्ट थियरम में कैसा था कि दोनों 90 डिग्री है, 90 डिग्री लेकर आए थे. मतलब अगर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कॉर्ड के साथ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो 90 डिग्री हो जाता है. तो सेम यहाँ पे हम लोग को OPA 90 डिग्री करना है, या तो हम लोग OPB 90 डिग्री करना है. उसके बाद ये प्रूव होगा क्या, OP जो है इज परपेंडिकुलर टू AB. अंडरस्टैंड. तो हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम में. जैसे कि ये फिगर में दिखाई दे रहा है, AB इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O, और P क्या है, उसका मिड पॉइंट है कॉर्ड AB का. अगर मिड पॉइंट के हिसाब से AP इज कॉन्ग्रुएंट टू PB. अभी हम लोग को प्रूव क्या करना है, OP जो है इज परपेंडिकुलर टू AB. हम लोग ने ज्वाइन कर लिया है कंस्ट्रक्शन के थ्रू सेग OA एज वेल एज सेग OB को. अभी जस्ट देखेंगे तो हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP. तो OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB, दैट इज रेडाई ऑफ द सेम सर्कल. फिर OP के साथ कॉन्ग्रुएंट है, और हम लोग गिवन है क्या, AP इज कॉन्ग्रुएंट टू BP. तो हम लोग ने ये तीनों को प्रूव किया, ये दो ट्राइंगल दैट इज AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू BOP SSS टेस्ट से. अभी ध्यान दे, अभी CACT में क्या आएगा, OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू OPB. अभी हम लोग ठीक से देखेंगे तो OPA और OPB क्या है, लीनियर पेयर है. सो OPA प्लस OPB इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल इन लीनियर पेयर, वो एंगल का साइन है. तो अभी OPA के जगह पे, OPB के जगह पे मैंने OPA सब्सटीट्यूट किया है फ्रॉम 1, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड व्हाट OPB इज कॉन्ग्रुएंट टू OPA. फाइनली वी रिसीव दैट OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री. कैसे, क्योंकि ये 2 OPA हो जाएगा, 180 को डिवाइड करने का 2 से, तो यू विल गेट 90 डिग्री. फाइनली अभी OPA क्या हो गया है, 90 डिग्री हो गया. इसका मतलब क्या है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB. समझा. तो segment joining the center of a circle and the midpoint of its chord is perpendicular to the chord, finally proved. Now next हम लोग ना थियरम में चलते हैं. थियरम खत्म हो गया है. नाउ वी विल गो टू practice set 6.1. So this is the question related to it. What distance of chord AB from the center of a circle is 8 centimeter. The length of the chord AB is 12 centimeter. Find the diameter of the circle. I am extremely sorry to say figure थोड़ा सा dull है, but
हम लोगों ने ऊपर जो फिगर बनाया था वही फिगर मैंने नीचे ही बनाया है, बट थोड़ा वो क्या बोलते हैं, इट्स नॉट क्वाइट क्लियर, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो इस जैसे इसमें दिया है डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, ओपी का मेजरमेंट बात कर रहे हैं। ओपी का मेजरमेंट क्या है, 8 सेंटीमीटर, बिकॉज सी ओपी, नाउ यू कैन सी क्लियरली, सी ओपी का मेजरमेंट क्या है, 8 सेंटीमीटर है। ओके, देन लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी का सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को किसका ये फाइंड आउट करना है, डायामीटर ऑफ द सर्कल का हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इसमें कभी भी याद रखना कि ये अभी हमारे पास प्रीपेंडिकुलर साइन है और हमारे पास कॉर्ड भी है ए बी, ओपी भी है। ओपी क्या है, ओपी is the distance of the chord AB from the center of a circle. So we will just construct we will join OA. तो उसकी वजह से हम लोगों को OPA एक ट्राइंगल मिल रहा है। जैसे प्रीपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री है हमारे पास और OPA क्या है, एक ट्राइंगल है। AB का मेजरमेंट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, सो हम लोगों को AP का मेजरमेंट मिल सकता है हाफ, 12 का हाफ, दैट इज 6 सेंटीमीटर। नाउ जस्ट सी इन ट्राइंगल OPA, एंगल OPA का मेजरमेंट क्या है, 90 डिग्री है। तो इसलिए वी कैन यूज द हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम। सॉरी आई हैव फॉरगॉटन टू मेंशन पाइथागोरस थ्योरम, एग्जाम में जस्ट मेंशन कर लेना। ओके, तो यहाँ पे OA स्क्वायर दैट इज हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू OP स्क्वायर, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो 8 8 64, 6 6 36। ये 6 क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने AP का मेजरमेंट ऑलरेडी निकाला है और OA का हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालने के बाद वी गॉट OA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। सो OA, अभी ये क्या है, देखो OA क्या है, रेडियस है, हम लोगों ने ऊपर थियरम में भी सीखा था, एम आई राइट। इसलिए देखो OA और OB कॉन्ग्रुएंट क्यों होता था, बिकॉज दे आर द रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। तो OA को हम लोग रेडियस बोला जाता है। तो डायमीटर के लिए 2r, दैट इज 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है डायमीटर ऑफ द सर्कल, it is 20 centimeter. Okay, now we are moving on to the fifth sum. See, in the adjoining figure, the center of two circle is O. Chord AB of bigger circle intersects the smaller circle in point P and Q. हम लोगों को प्रूव क्या करना है, AP is equal to BQ. देखो हम लोग को ये प्रूव करना है, दैट इज AP इज इक्वल टू QB। तो उसके लिए क्या करना है, जस्ट आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन यू। इसमें देखा जाएगा तो दो सर्कल है, एम आई राइट। तो दो सर्कल पॉइंट O है। एक्चुअली यू नो आई फॉरगॉटन टू एक्सप्लेन रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये इसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो रहेगा उसमें मैं आपको बताने वाले हूँ कि वो उसके साथ साथ वी विल कंटिन्यू। ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। वो वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो में जो भी मेंशन्ड है वो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे यू नो दो सर्कल है और दोनों सर्कल का पॉइंट जो है O है, सेंटर पॉइंट। फिर AB जो है ये लॉन्ग सर्कल का कॉर्ड है, PQ जो है ये स्मॉल सर्कल का कॉर्ड है। ओके, और M जो है पॉइंट M दोनों के बीच में है। अभी हम लोग को ध्यान क्या रखना है, दैट अभी हम लोग को प्रूव क्या करना है, AP इज कॉन्ग्रुएंट टू QB। तो उसके लिए वी हैव टू ड्रॉ सेग OM इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ये एक्चुअली जो है ना ये कंस्ट्रक्शन है टू प्रूव व्हाट, AP इज कॉन्ग्रुएंट टू QB। So let's get started. Directly we are going on to the solution. So for smaller circle, OM is perpendicular to chord PQ. ओके क्योंकि मैंने बताया था स्मॉल सर्कल के लिए कौन सा कॉर्ड है, PQ है कॉर्ड। ओके, तो PM इज इक्वल टू MQ, दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। देखो पहले फर्स्ट थियरम में हम लोगों ने प्रूव किया था कि ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या PM विल बी कॉन्ग्रुएंट टू MQ, इतना समझा। अभी बिगर सर्कल में भी सेम फंडा अप्लाई करना है, क्या AM विल बी कॉन्ग्रुएंट टू MB। सी बिगर सर्कल में OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, इसका मतलब क्या है, AM इज कॉन्ग्रुएंट टू MB। अभी हम लोगों ने तोड़ दिया है, देखो AM कंसिस्टेस ऑफ व्हाट, AP प्लस PM और MB कंसिस्टेस ऑफ MQ प्लस QB।
अभी ऊपर ऊपर ही हम लोगों ने प्रूव किया था कि हम पी एन इज इक्वल टू एम क्यू सी, ए पी प्लस पी एम क्यू प्लस क्यू बी। तो जैसे ऊपर मैंने क्या किया है, पी एम के जगह पे एम क्यू को सब्सटीट्यूट किया है फ्रॉम 1, तो एम क्यू कैंसिल हो जाएगा एंड एट लास्ट फाइनली ए पी इज इक्वल टू बी क्यू एंड हेंस प्रूव्ड। आई थिंक आपको ये सब अच्छे से समझ में आया है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, that is, prove that if a diameter of a circle bisects two chord of a circle of a chord bisects two chord of a chord of the circle, then those two chords are parallel to each other। ना ये है डायग्राम उसका, जस्ट लुक, एक सर्कल है जिसमें दो कॉर्ड है और हम लोगों को प्रूव क्या करना है कि वो जो दो कॉर्ड है ना, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इफ अ डायमीटर, तो इसमें डायमीटर कौन सा है, पी क्यू है डायमीटर। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये डायग्राम थोड़ा सा ब्लर है, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है। पी क्यू जो है क्या है, दे आर द डायमीटर ऑफ द सर्कल विच बाइसेक्ट्स द टू कॉर्ड्स। इट्स देखो यहाँ पे पी क्यू जो है बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड पॉइंट एम में और पॉइंट एन में, दोनों को। और हम लोग को प्रूव क्या करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो उसके लिए ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, पी क्यू क्या है, डायमीटर है, और गिवन में वही लिखना है, डायमीटर पी क्यू बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ए बी एंड सी डी इन पॉइंट एम एंड एन रेस्पेक्टिवली। हम लोग को प्रूव क्या करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ध्यान से देखेंगे तो प्रूव डायमीटर पी क्यू बाइसेक्ट्स द कॉर्ड एट ए बी, डायमीटर पी क्यू बाइसेक्ट्स द कॉर्ड एट ए बी। इसका मतलब क्या है, अगर बाइसेक्ट होता है तो ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम, तो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। Segment joining the center of the circle and midpoint of its chord is perpendicular to the chord। फाइनली हम लोगों ने प्रूव क्या किया है, ओ एम ए क्या है, 90 डिग्री है। ओ एम ए कैसे 90 डिग्री हो गया, सुनो, डायमीटर पी क्यू जो है बाइसेक्ट करता है ए बी को एट पॉइंट एम पे, दैट इज गिवन। अगर बाइसेक्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है, ए एम इज इक्वल टू एम बी। कभी भी याद रखना, अगर फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस पॉइंट है सेंटर ऑफ द सर्कल्स है एंड इट इज बाइसेक्टिंग द कॉर्ड, इसका मतलब क्या है, वो दोनों पर्टिकुलर ये जहां से वो बाइसेक्ट हो रहा है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोगों ने इतना प्रूव किया, अभी इतना आया है, इसका मतलब क्या है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, तो ओ एम का मेजरमेंट क्या रहेगा, ऑफकोर्स 90 डिग्री रहेगा। अभी हम लोग कॉर्ड सी डी पे चलते हैं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा इस बात पे। जब सी डी पे पी क्यू जो है बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को एट पॉइंट एन, तो पॉइंट एन, इसका मतलब क्या है, सेम, क्या सी एम विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एन क्यू एंड ओ एन विल बी परपेंडिकुलर टू सी डी। तो ओ एन डी का मेजरमेंट या ओ एन सी का मेजरमेंट क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। अभी ध्यान से देखो, मैंने 90 डिग्री कौन से इस पे लिया है, मैंने 90 डिग्री ओ एम ए पे लिया है और ओ एन सी पे लिया है। क्यों, बिकॉज अगर हम लोग दोनों को 90 डिग्री लेंगे तो ये इंटीरियर एंगल फॉर्म करता है, कौन सा, ए बी, एक ये इंटीरियर एंगल फॉर्म करता है। एंड इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या रहता है, ऑफकोर्स 180 डिग्री रहता है, एम आई राइट। दोनों को हम लोग ऐड करने के बाद 90 प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री हो जाता है। बट ओ एम ए और ओ एन सी दे फॉर्म अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल OMA and ONC, they form a pair of interior angle on line AB and CD when seg MN in their transversal। अभी देखो, मैंने आपको जस्ट बताया कि ये जो है ये एक इंटीरियर एंगल है जिसमें AB इज पैरेलल टू CD और PQ क्या है, उसका ट्रांसवर्सल है। तो लास्ट में एट लास्ट फाइनली वी हैव प्रूव्ड कॉर्ड AB इज पैरेलल टू कॉर्ड CD इंटीरियर एंगल टेस्ट से। मैं आपको फिर से ये समझाती हूँ, इट्स वेरी सिंपल, बस गिव मी 2 मिनट्स। अभी देखो, प्रूव दैट इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल देन दोज टू कॉर्ड्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसमें देखा जाएगा तो ए बी एंड सी डी को हम लोग को पैरेलल बनाने का है और पी क्यू क्या है, उसका डायमीटर है विच इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। अभी ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखो, ए बी के ऊपर डायमीटर कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, पॉइंट एम पे। इसका मतलब क्या रहेगा, ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एम बी। ओके, उसके बाद अभी नेक्स्ट फिगर पे सेम
सी डी के इसमें इट इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एन, तो सी एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एन डी। इतना समझा। इसके बाद क्या, इसके बाद देखो अभी ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी और इसमें ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो परपेंडिकुलर हो रहा है इसलिए ये दोनों क्या है, इसका दोनों का मेजरमेंट क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो इसका भी अगर देखो ओ एम ए का भी 90 डिग्री है और ओ एन सी का भी 90 डिग्री है, तो दोनों का मेजरमेंट मिला के कितना होता है, 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल टेस्ट क्या है, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये 180 डिग्री इसलिए हुआ तो जब तो ये 180 डिग्री होता है, तो इसलिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी हो जाता है लास्ट में। आई थिंक फाइनली यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम वेल। देखो बाकी का और भी 2-3 सम बाकी है प्रैक्टिस सेट पे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो ज़रूर बना के दे दूंगी। या नेक्स्ट सेशन में आप फिर से जो भी आपका डाउट्स रहेगा वो आपको क्लैरिफाई होके मिलेगा। बस यही आज का सेशन हम लोग यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे रहेगा और आपका डाउट का क्लैरिफिकेशन पे रहेगा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये मेरा नया चैनल है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। बाय, सी यू।